Good morning, students. In first term examination, elementary mathematics will be coming, and units and measurements, which topics I have taught. I told some of the topics you need to prepare from them. They never ask any question. Take at the same time, physical world also is there. From the physical world, in any examination, in any board examination, they never ever ask any question. So you need to prepare the physical world also. Take, so you have to prepare units and measurements and elementary mathematics. Now dimensions. It is clear. For first term examination, you have to prepare elementary mathematics. Elementary mathematics I have explained, I think almost 12 to 13 videos. Okay, I have explained all the concepts very clearly. Okay, after that units and measurements, then dimensions. Okay, today I will be explaining the dimensions. It's not so big topic, it is a very small topic only. Okay, it is not so difficult also, it is very easy, and it is related to the units and measurements. Units and measurements में हमने देखा होगा physical quantities के related में ये आएगा. ठीक है, physical quantities के related में ये dimensions आएगा. ठीक, अब देखना dimensions में हम कुछ basic things use करना पड़ेगा. We are using the some of the basic things. Those are mass के लिए हम एक standard notation दिखाएंगे, that is capital M. ठीक, mass, then length के लिए capital L, then time के लिए capital T. ठीक, then current electricity, so you can show that the A, capital A, and some of the books capital I दिया होगा. Then mass के लिए capital M and length के लिए capital, you can show that time T. Then current के लिए you can use the capital A, and temperature के लिए Kelvin. Take, and some of the books में theta भी दिया होगा, that is it is depends on author. Okay, so some of the books you can see in place of K, theta will be there, and in for current electricity in place of A you can see the I also you can use. It's not a problem. ठीक, पहले अब ये याद करना पड़ेगा dimensions के लिए. अब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम यूज करते हैं, स्टैंडर्ड लेटर्स हम यूज करते हैं. ठीक है, मास के लिए कैपिटल एम, एंड लेंथ के लिए कैपिटल एल, एंड टाइम के लिए कैपिटल टी, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए, एंड टेम्परेचर के लिए के. ठीक है, दीज आर द स्टैंडर्ड लेटर्स. ठीक है, स्टैंडर्ड लेटर्स. ठीक, अब देखेंगे डायमेंशंस क्या है. व्हाट इज द डायमेंशंस. ठीक है, पहले हमने क्या एक्सप्लेन किया, ये एक्सप्लेन किया था टेम्परेचर के लिए, एंड करंट के लिए, टाइम के लिए, लेंथ के लिए, मास के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड लेटर्स हम यूज करेंगे. ठीक है, स्टैंडर्ड लेटर्स विच यू आर यूजिंग द डायमेंशंस. ठीक है, मेनली MLT मीन्स मास, लेंथ, टाइम. आफ्टर दैट सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में हम यूज करना है करंट इलेक्ट्रिसिटी यूज करना पड़ेगा. सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में अब टेम्परेचर में यूज करना पड़ेगा. टेम्परेचर के लिए के, एंड करंट के लिए ए. ठीक, याद है ना, ये पहले याद कर लीजिएगा. ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड लेटर्स. नाउ लिसन, सपोज हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं PQ इज अ फिजिकल क्वांटिटी. देन यूनिट, physical quantity and unit. Suppose I have taken the physical quantity, that is the length. Length के लिए unit क्या होगा बताओ, मीटर नहीं तो सेंटीमीटर, तो मीटर. ठीक, इसके लिए स्टैंडर्ड नोटेशन में आप ऐसे शो कर सकते हैं, L power 1, L की power 1. ठीक है, L की power. And if it is area, you can write एरिया का यूनिट क्या होगा तो मीटर मल्टीप्लेस मीटर, दैट इज L मल्टीप्लेस L स्क्वायर. ठीक, एंड सपोज वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम. व्हाट इज दैट? वॉल्यूम मींस यू कैन राइट मीटर मल्टीप्लेस, that is L cube.
L cube. What is the dimension? What is the dimension means sir? अब कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव करने के समय, कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को आप डिराइव करने के समय उसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, नहीं तो कितना बार फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है, उसको हम बोलेंगे डायमेंशंस। अब इसमें देख लीजिएगा, लेंथ इज व्हाट? फिजिकल क्वांटिटी। इसी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए हम क्या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यूज कर रहे हैं? एल पावर 1, ठीक है। लेंथ हम यूज कर रहे हैं ना, एल पावर 1। कितना बार इन्वॉल्व है? एक ही बार इन्वॉल्व है, ठीक है, एल की पावर 1। अब देखना एरिया। अब एरिया को आप डिराइव करने के लिए कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम यूज कर रहे हैं? लेंथ ओनली। कितना बार इट इज, हाउ मेनी टाइम्स इट इज इन्वॉल्व? L square means 2 times, meter square meter multiplies meter square means 2 times involved। अब देखना वॉल्यूम के लिए आप वॉल्यूम को आप डिराइव करने के लिए हम कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम यूज करें? इधर भी हम लेंथ यूज करें, लेकिन इधर लेंथ कितना बार इन्वॉल्व हुआ? 3 बार, ठीक। अब देखिए ये पावर्स देख लीजिए, ये पावर्स, ये तो पावर्स देख लीजिए, ये पावर्स देख लीजिए। व्हाट आर द डायमेंशंस मींस है? These are the powers of the fundamental physical quantities to derive any physical quantity, ठीक है। इसी पावर्स को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। डायमेंशंस अब सिंपली नॉर्मल बात बता सकते हैं, कोई सा भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना बार इन्वॉल्व हुआ। इधर बताओ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज व्हाट? लेंथ कितना बार इन्वॉल्व हुआ? 1 बार। इधर 2 बार इन्वॉल्व हुआ, इधर 3 बार इन्वॉल्व हुआ। दैट मीन्स सर कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को अब डिराइव करने के समय फिजिकल क्वांटिटीज कितना बार इन्वॉल्व हो रहे हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सॉरी फंडामेंटल, यू हैव टू से दैट वेरी क्लियरली। अब कोई सा भी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के समय, ओके, समय कितना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितना बार इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे डायमेंशंस। इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो तीनों में विच फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज दैट? लेंथ इज दैट। लेंथ पहले केस में है कितना बार इन्वॉल्व हुआ? 1 बार। एंड दूसरा केस में 2 बार इन्वॉल्व हुआ, एंड तीसरा केस में 3 बार इन्वॉल्व हुआ। अब देखें पावर इंडिकेट्स व्हाट? पावर इंडिकेट्स व्हाट? डायमेंशंस। इसका मतलब आप इसके देख के बता सकते हैं, लेंथ इसमें 3 बार इन्वॉल्व हुआ। अब वॉल्यूम को डिराइव करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ 3 बार इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। इसी पावर को हम बोलेंगे डायमेंशंस। गॉट माय पॉइंट? इसी पावर को हम बोलेंगे डायमेंशंस, डायमेंशंस, ठीक है। आपको वन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, टू डिराइव एनी फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फॉर दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितना बार इन्वॉल्व हुआ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितना बार इन्वॉल्व हुआ, उसी को हम बोलेंगे डायमेंशंस। These are the powers of fundamental physical quantities. These are the powers of fundamental physical quantities. ठीक है। आपको अब एक और एग्जांपल, अब देखना डेंसिटी। हम देखना एक और एग्जांपल, हम देखना डेंसिटी। और द डेंसिटी फॉर्मूला आपको अच्छे से फॉर्मूला ऐड होना चाहिए। फॉर्मूला आएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई सा भी डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। द थिंग इज यू शुड लर्न द formula. If you know the formula, you don't need to worry. So simply you can add the dimensional formula of the given physical quantity. ठीक, अब बताएंगे वन बाय वन। और डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या लिखेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को क्या लिखेंगे? m पावर 1। क्या लिखेंगे? m पावर 1, ठीक। मास को क्या लिखेंगे? m पावर 1। इधर व्हाट इज दैट? वेलोसिटी इज दैट। अब वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी को सॉरी मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम ना, वॉल्यूम मींस आप क्या लिख सकते हैं? L क्यूब। गॉट माय पॉइंट? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं, हमने गलती से बोला था। सो डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हियर v मींस वेलोसिटी नहीं है, हम गलती से बोला। सो दैट इज द मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास का कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड सिंबल ऑलरेडी आप लोगों को दिया m पावर 1, एक ही बार में m पावर 1। एंड दिस इज व्हाट? वॉल्यूम। वॉल्यूम मींस सिर्फ फॉर्मूला क्या होगा? LBH। अब क्या लिखेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लस विड्थ मल्टीप्लस हाइट। दैट मींस सर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व है। कितना बार? 3 बार। व्हाट इज L क्यूब,
ठीक L3 इसको सिंपलीफाई करके अब ऐसे लिखते हैं M4 ये L4 को अब न्यूमरेटर में लिखेगा तो L4 - 3 L4 - 3 ठीक। अब देखिए ना क्या क्या इन्वॉल्व से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास और लेंथ, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर इन्वॉल्वड है, ठीक है। अब मास कितना बार इन्वॉल्व हुआ, एक ही बार इन्वॉल्व हुआ, कितना बार इन्वॉल्व हुआ, एक ही बार। एंड लेंथ 3 बार इन्वॉल्व हुआ, L4 - 3 इज देयर, -3 इंडिकेट्स व्हाट, दैट मींस 3 बार इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखिए पावर्स देखिए, अब डेंसिटी के लिए हमने ऐसे लिखते हैं M4 L4 - 3 लिखा। अब ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर्स क्या इंडिकेट करेंगे, द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग को क्या देंगे, दैट मींस डायमेंशंस देंगे, इसको हम बोलेंगे डायमेंशंस। गॉट माय पॉइंट। इसमें पहले हमने बताया था लेंथ क्या बताया था, एरिया का बताया था, वॉल्यूम को बताया था, ठीक है। उसमें केवल लेंथ इज इन्वॉल्व, दैट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें डेंसिटी के लिए आप देखें तो दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, क्या क्या है, एक तो मास एक लेंथ, ठीक है। अब इसमें हमने सिंपलीफाई करने के बाद हमको कुछ फोर्स मिला, मास के लिए पावर कितना है 100, लेंथ के लिए पावर कितना है -3। इसी पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस बोलेंगे, ठीक है। द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज व्हेन यू आर डेराइविंग एनी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। हमको सब एक फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव कर रहे हैं, उसी समय हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ऐसे रिप्रेजेंट करेगा तो हमको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कुछ पावर्स मिलेगा, ठीक है, कुछ पावर्स मिलेगा। तो कितना पावर है हमका 1 एंड L का -3। इसी ये पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। इसी पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। एंड ये ब्रैकेट देखे ना, इसी ब्रैकेट को बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल formula. Don't get confused. What is the dimension means sir? Dimensions means sir means अब कोई सा भी फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करने के समय हम किससे डेराइव करेंगे, बाय यूजिंग द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ओनली। ओके, सपोज यू आर डेराइविंग देनी फिजिकल क्वांटिटीज मींस सर हम क्या यूज करना पड़ेगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज करके सिंपलीफाई करेगा तो हमको इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को कुछ पावर्स में वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब m की पावर 1 L की पावर -3, 1 और -3 को हम बोलेंगे डायमेंशंस ऑफ दिस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डेंसिटी, ठीक। एंड इसी ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे हर बार हमें ऐसे ब्रैकेट में हम दिखाता है, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट ऐसे करेंगे तो उसको हम बोलेंगे, ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन ये पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस ऑफ M1, dimensions of L -3, ठीक है। दिस इज द डायमेंशंस पावर्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। इसी ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक। इट इज क्लियर, इतना बात है। लेकिन ये चैप्टर बहुत हल्का है, बट द थिंग इज ना समटाइम्स टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई मीन सर sometimes they don't know what kind of physical quantities they will ask. I will explain some of the physical quantities, but I think even in your textbook it is given, I think your textbook it is given 41 total, how many are there, 41 are there। ये 41 का आप फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद करेगा तो आपको फॉर्मूला याद होगा तो then only you can add the dimension formula easily, otherwise, ठीक, yeah, got my point, got understood what is the dimensions। डायमेंशंस में मतलब हमने क्या बताया, अब कोई सा भी एक फिजिकल क्वांटिटी को आप डेराइव करना चाहे तो, ठीक है, दैट इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम क्या यूज करना पड़ेगा, हम यूज करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यूज करने के बाद हमको पता चलेगा एक एक फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना बार यूज कर रहे हैं, कितना बार में सर ए वैल्यू कहाँ आएगा, पावर्स में आएगा। द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, okay, the powers of fundamental physical quantities in deriving any derived physical quantity, उसी पावर्स को हम बोलेंगे डायमेंशंस। क्या बोलेंगे, पावर्स को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशंस। उसी ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला। गॉट माय पॉइंट, दैट्स इट, ठीक है, डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपको बुक में बहुत सारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, सम ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला एक्सप्लेनिंग एंड रिमाइंडिंग यू हाउ टू by heart it means sir formula आप याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला याद होगा तो then only you can able to write, otherwise you can't write, ठीक, या। Suppose velocity is equal to क्या है, velocity is equal to distance upon time,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखने के लिए पहले फॉर्मूला होना चाहिए, फॉर्मूला नहीं तो आप यूनिट के बेस में भी आप लिख सकते हो। सपोज देख लेना, सो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होगा तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मीटर मींस लेंथ है ना, लेंथ इज व्हाट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अब डी के जगह क्या है एल पावर 1 एंड इसे टाइम टी पावर 1। अब इसको सिंपलीफाई करके लिखेगा तो एल पावर 1 टी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वेलोसिटी। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वेलोसिटी। Similarly, look at acceleration is equal to velocity upon time। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूज्ड टू राइट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। अब कैसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिपेंड्स ऑन योर मींस एबिलिटी, ठीक है। by using formula also you can write, otherwise by using unit also you can। suppose आप unit यूज करें तो यूनिट में क्या मीटर दिया, मीटर में लेंथ ओनली, अब क्या लिखेंगे एल पावर 1 एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया सेकंड स्क्वायर, सेकंड मींस टाइम स्क्वायर। सो देयरफॉर यू कैन राइट एल पावर 1 टी पावर -2 is the dimensional formula of acceleration, ठीक है। dimensional formula of acceleration। सपोज आप लिखना चाहिए सो फोर्स के लिए, सपोज फोर्स F is equal to ma, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला F is equal to ma लिखे हुए तो काम नहीं चलेगा, उसके बाद ma को अब ब्रेक करना पड़ेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, अब ब्रेक करना पड़ेगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रेक करेगा तो देन ओनली डायमेंशंस आएगा, नहीं तो नहीं। दैट ओनली आई टोल्ड डायमेंशन, व्हाट आर द डायमेंशंस, द पावर्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फॉर्मूला याद होगा तो उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, उसी फॉर्मूला को ब्रेक करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में आप ब्रेक करेगा तो देन ओनली आपको पता चलेगा कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितना बार इन्वॉल्व हो रहा है, आपको पता चलेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब देख लेना F is equal to ma, mass तो डायरेक्टली इट इज फंडामेंटल ओनली, अगेन यू ब्रेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं, लेट इट बी मास। अब देखें एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन को ब्रेक करेंगे, एक्सेलरेशन को कैसे ब्रेक करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। कैसे ब्रेक करेंगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है लेकिन टाइम इज फंडामेंटल, अगेन वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, अगेन वेलोसिटी को ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब वेलोसिटी को ब्रेक करने के लिए क्या लगता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो ऐसे एक को ऐसे तोड़ के जाना पड़ेगा, ऐसे एक को तोड़ेगा तो आपको समझ में आए, ठीक है। लेकिन आफ्टर आप लोग यूज्ड टू होगा तो तुरंत आप ले सकते हैं, ठीक है। अब बिगिनिंग में इनिशियल स्टेज में अब देख लेना थोड़ा टाइम लगेगा कैसे लिखना है, लेकिन आप एक बार यूज्ड टू होगा तो ये सब कुछ लिखने के लिए जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका दिमाग में चलेगा, फटाफट लिखेंगे, ठीक या ठीक है। F is equal to ma, इसको हम क्या लिखने हैं, डायमेंशंस लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखने के लिए हमने क्या बोला, पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने के बाद फॉर्मूला में तो फंडामेंटल में ब्रेक कर दो। सो मास इज ऑलरेडी फंडामेंटल में, इसको ब्रेक करने के लिए कोई जरूरत नहीं। उसके बाद एक्सेलरेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे लिखे, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी अपॉन टाइम लिखेगा तो टाइम इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, now listen, अब ऐसे ब्रेक करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v by t ना। अब v इट इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड t इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अगेन वेलोसिटी को क्या करेंगे, वेलोसिटी को अगेन एक और बार ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करेंगे तो वेलोसिटी इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस मींस मीटर ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दैट्स l पावर 1 अपॉन t पावर 1। देयरफॉर वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं, l पावर 1 t पावर -1, ठीक है। वेलोसिटी के लिए हमको मिला l पावर 1 t पावर -1। अब इसको यूज करके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी को कहता है l पावर 1 t पावर -1 अपॉन नीचे t इज है, t मींस t पावर 1, ठीक। अब ये t पावर 1 ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं l पावर 1 t पावर -2, l पावर 1 t पावर -2 लिखना है। अब एक्सेलरेशन को पता है, अब लिख सकते हैं m को क्या लेंगे, m पावर 1 ओनली। अब एक्सेलरेशन कितना, l पावर 1 t power -2। This is the dimensional formula of the force. This is the dimensional formula of a force, ठीक है। अब ऐसे ब्रेक करके तोड़ के आप आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक। अब एक और जो करेंगे फोर्स
नेक्स्ट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लस डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन के अब क्या लिखेंगे, फोर्स मल्टीप्लस डिस्प्लेसमेंट। जस्ट नाउ हमने फाइंड आउट किया था फोर्स का, दैट इज m पावर 1 दैट t पावर m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। in a dimensional formula f is equal to ma, f is equal to ma means that so dimensional formula of the force हम अभी एक्सप्लेन किया था m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2। फोर्स के लिए m पावर 1 l पावर 1 t पावर -2 एंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस मींस आप क्या लिखते हैं l पावर 1, डिस्टेंस मींस लेंथ, लेंथ माने हो तो la लिखना पड़ेगा। अब मास हो तो m, लेंथ हो तो l और टाइम हो तो t। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस आपको मिलेगा mlt में, मास लेंथ टाइम एंड कुछ में मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द करंट एंड इन टर्म्स ऑफ द टेंपरेचर आल्सो। ठीक, या अब क्या लिखेंगे m पावर 1 l पावर 1 into l पावर 1 l स्क्वायर t पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वर्क डन, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए वर्क डन। ठीक, अब एक और करेंगे, f is equal to g m1 multiplies